اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا اور زبردست سلسلہ لے کر مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں۔ نام ہے سلسلے کا اللہ کا مہینہ۔ اس کے نام سے آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ اس سلسلے میں کیا بیان ہوگا اور کس ضمن میں اس سلسلے کو مدنی چینل پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دنیا بھر میں ایک طرح سے رمضان المبارک کی آمد کا اب شور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جب رجب کا مبارک مہینہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ آتا ہے تو نیک بندوں کی جو طلب ہے، جو تڑپ ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایک کاوش اور ایک نیکیوں کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتا ہے۔ ایک کوشش نظر آتی ہے کہ اب روزوں کی طرف زیادہ میلان ہے، اب زیادہ نیکیوں کی طرف عاشقان رسول آنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے اس مہینے کی آمد پر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے ماہ رجب المرجب میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کا احسان ہے۔ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رجب کا بابرکت مہینہ دیا ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ رمضان کا گویا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ نیکیوں کی برکتیں، نیکیوں کی بہاریں، نیکیوں کے خزانے لے کر یہ ہمارے جانب بڑھتا ہے، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو پیارے بندے ہوتے ہیں، جو سمجھدار اور عقل مند بندے ہوتے ہیں، وہ رجب کی بابرکت راتوں اور اس کے پربہار دنوں کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کا مہینہ ہم اسی عنوان کے تحت لے کر انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے جب تک ماہ رجب کی بہاریں ہمارے درمیان موجود ہیں، تاکہ ہم رمضان کے لیے بھی پریپیئر ہوں، اور ہمارا یہ ذہن بنتا رہے کہ ہمیں آگے اب جو دن آ رہے ہیں ان کو کس انداز سے گزارنا ہے، اور اب انہیں عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے۔ جب عید آ رہی ہوتی ہے، بقرعید آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں، کوئی جوتے خرید رہا ہوتا ہے، کوئی دیگر چیزوں میں ایک پریپریشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بقرعید آتی ہے تو پریپریشن ہوتی ہے، کوئی تہوار آتا ہے تو پریپریشن ہوتی ہے۔ نیک لوگ رمضان المبارک کی تیاری رجب سے ہی خاص طور پر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں تو یوں بھی ملتا ہے کہ 6 ماہ سے ہی رمضان المبارک کی تیاری وہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کرام فرماتے رہتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری 6 ماہ سے، یعنی ابھی رمضان المبارک تشریف نہیں لایا لیکن 6 ماہ سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ اور خاص کر ماہ رجب المرجب کی جب آمد ہوتی تو خاص کر اس کی تیاریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ان بہاروں کو بڑے پیارے انداز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سلسلے میں ان بہاروں کو بھی بیان کریں گے کہ رجب المرجب کے اجتماعات میں، رجب المرجب کی بابرکت محافل میں آ کر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام
आशिकान रसूल जो इज्तिमा सजाते हैं, किस अंदाज से इससे उम्मत को फ़ायदा होता है और कैसे कैसे लोग जो हैं वो इन इज्तिमात से फ़ायदा उठाकर नेकी की राहों पर गामज़न हो जाया करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अच्छी अच्छी नीयतें अपने सिलसिले के लिए भी कर लेते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए मैं भी नीयत करता हूँ, आप भी नीयत फरमाएँ। अव्वल तो आखिर सिलसिले में शिरकत करेंगे, इल्म दीन सीखेंगे, सीख कर अमल करेंगे, हो सका तो दूसरों तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई बात तो ऐसी दिल पे लगी जाती है, एक आध बात तो जहन में रही जाती है जो पूरे बयान में से हम आगे किसी को बता सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि उन बातों को आगे बताएं और सिलसिला पूरा देखकर या कोई बयान सुनकर किसी इज्तिमा में शिरकत करके कोरे नहीं लौटना चाहिए। कुछ जहन में ऐसे पॉइंट्स बना लेने चाहिए या कुछ ना कुछ लिख लेना चाहिए कि ये बात तो मैं अपने घर में बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, ये बात कल मुझे ऑफिस में बतानी है, ये मैं अपने कुलीग को बताऊंगा, ये मैं अपने क्लास फेलो को बताऊंगा कि ये बात जो है ये कल मैंने सीखी। तो इससे ये होगा कि एक तो आप जिस बात को बयान करेंगे ना वो चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी याद रहेगी, ज़्यादा देर तक याद रहेगी और उसको अमल करने में आपको ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होगी। जब आप दूसरों को बताएंगे आपका ज़मीर खुद कहेगा कि यार खुद अमल नहीं करता है, दूसरों को बता रहा है। जिस तरह मैं ये सिलसिला कर रहा हूँ, अल्लाह का महीना, तो रजब की जैसे जैसे बातें मैं करूँगा तो अल्टीमेटली मेरे जहन में ये बात भी आएगी, खुद सवाल पैदा होगा कि यार तू खुद रजब का एहतराम नहीं करता है, तो अब तू भी रजब का ज़्यादा एहतराम कर। जब तू लोगों को बता रहा है तो तुझे भी तो एहतराम करना चाहिए। तो ये बात आगे बताने से, लोगों तक कन्वे करने से अपना जहन भी बनता है कि मैं खुद भी इस बात पर अमल करने वाला बन जाऊँ। और फिर हदीस पाक भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत। तो ये तबलीग का काम ये सीना बसीना चलता रहेगा और हमें ये काम करते रहना होगा ताकि तबलीग दीन के फ़राइज़ सरअंजाम होते रहें। और हम अगर इंशाअल्लाह सिलसिलों को देखकर मदनी फूलों को आगे बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी फ़ायदा होगा। रजब का बाबरकत महीना है, नेकी की दावत का सवाब अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने चाहा तो और ज़्यादा मिलेगा। ये नेकियों के मुबारक दिन हैं, इन दिनों में हमें ज़्यादा कोशिशें करनी है, इन दिनों में हमें नेकी की दावत बढ़ा देनी है। और हर काम में जैसे बुनियादी तौर पर अच्छी अच्छी नीयतों का मामला है, तो रजबुल मुरज्जब में हमारी नीयतों का मामला भी बेहतर हो जाना चाहिए। हम खाना खाने बैठे हैं, हम पानी पी रहे हों, हम ऑफिस जाएं, हम दुकान पर जाएं, अपनी मुलाजमत पर जाएं, अपने काम पर जाएं, हम सोने लगें, हम किसी से मुलाकात के लिए जाएं, हमारी अच्छी अच्छी नीयतों का क्या अहवाल है। जिस तरह बहुत सारे नेकियों से, बहुत सारे अच्छे कामों से हम दूर हो चुके हैं, अच्छी अच्छी नीयतों से भी दूरी का एक सिलसिला है जो बन चुका है। रजब में हमें इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है। और ख़ासकर मैं ये दावत भी आपको दूंगा कि जैसे ही रजबुल मुरज्जब का महीना आया, हम अभी से अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं इन दिनों में जमात से नमाज़ें पढ़ूंगा, 5 नमाज़ें अदा करूंगा, इशराक़ व चाश्त के नवाफिल अदा करूंगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा के लिए नेकी की दावत मदनी दौरे की सूरत में देता रहूँगा। जब जब नमाज के लिए जाऊँगा लोगों को बुलाकर नमाज के लिए ले जाया करूँगा, गाली नहीं दूँगा, फहश गोई नहीं करूँगा, वालिदैन को नहीं सताऊँगा। इन दिनों में पहले अगर हराम रोज़ी कमाने का सिलसिला था, अब तौबा कर ले और अब इन दिनों में इससे बचने की काविश और कोशिश करता रहे। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करूँगा। इसी तरह जो अच्छी अच्छी नीयतें बनती हों, इन अय्याम के लिए हमें जब प्रिपेयर होना है, कमर बांधनी है, तो ये भी जहन बनाना होगा कि अच्छी अच्छी नीयतें ये अमल की बुनियाद हुआ करती हैं। अब अमल के दिन है, अब काम के दिन है, अब नेकियों के दिन है। और हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत जो है ये बुनियाद है, नीयत पर अमल डिपेंड करता है। जिस तरह इमारत डिपेंड करती है सुतून पर, इसी तरह अमल डिपेंड करता है नीयतों पर। अगर हम रोज़ों की कसरत कर लें, हम नवाफिल की कसरत कर लें, हम नेकियों की तरफ आने लग जाएं, लेकिन अगर अच्छी अच्छी नीयतें ही ना हो, यानी बुनियाद ही ना हो, तो नीयत के बगैर अमल का सवाब नहीं मिलता है। बगैर अच्छी नीयत के अमल का सवाब नहीं मिलता है। आपका मामूल है, आप रोज़ाना ऑफिस जाते हुए 50 रुपये सदका करते हैं, आपकी आदत है, आपको सवाब नहीं मिलेगा जब तक आप अल्लाह की रज़ा के लिए सदका ना करते हो। जब आप नियत करके कि मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ये काम कर रहा हूँ, तब सवाब मिलेगा। तो अच्छी अच्छी नीयतों के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि ये भी अमल की बुनियाद है। और अगर इन्नमल अमालु बिन्नियात को समझकर हम रजब के महीने से नेकियों का आगाज़ करें और अच्छी अच्छी नीयतों को थाम लें और अभी से अच्छी अच्छी नीयतें, अच्छे अच्छे इरादे हम कर लें,
تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ نیکیاں جو ہے وہ ہم کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جاؤں گا کہ اب مجھے اللہ کی رضا کے لیے 30 روزے یا 29 روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، مکمل تراویح پڑھوں گا۔ کسے پتہ ہے رمضان المبارک کون دیکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایسے ناظرین ہوں جو رمضان المبارک کا چاند نہ دیکھ سکے، جو رمضان کا ایک بھی روزہ نہ رکھ سکے، زندگی ہی وفا نہ کرے، لیکن اگر نیت ہوگی کہ اللہ پاک نے مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا، ساری تراویح پڑھوں گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، عشرہ رحمت میں خوب رحمت پانے کے بہانے تلاش کروں گا، عشرہ مغفرت میں خوب مغفرت کی بھیک مانگوں گا، جہنم سے آزادی کے عشرے میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں رہوں گا، اعتکاف کی سعادتیں پاؤں گا اور جہنم سے آزادی کے لیے گڑ گڑاؤں گا۔ اگر یہ نیتیں ہوں گی، کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن ان نیتوں کا ثواب ابھی سے مل جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اور آج کی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بات ہے، پہلا مدنی پھول اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ان مہینوں کا ویلکم کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ رمضان المبارک، شعبان المعظم اور رجب المرجب کو کس پیارے اور خوبصورت انداز میں ہمیں گزارنا ہے۔ یوں تو ہر دن اچھا ہے، اللہ پاک کا دن ہے، ہر رات اللہ پاک کی ہے، ہر ساعت اللہ پاک کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہی خود بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض راتوں کو دیگر راتوں پر، بعض دنوں کو عام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی عام بول چال میں عام طور پر ڈسکشن کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، عام رات الگ ہوتی ہے، بڑی رات الگ ہوتی ہے۔ بڑی رات کیا ہوتی ہے بھائی؟ کیا اس کے گھنٹے بڑھ جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے اس میں چاند جو ہے وہ زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے؟ بڑی رات کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت کسی بڑی ہستی سے یا بڑے عمل سے اس رات کو نسبت حاصل ہوتی ہے، وہ رات بڑی رات ہو جاتی ہے۔ بڑا دن کیا ہوتا ہے؟ بڑے دن میں کوئی سورج بڑا نہیں ہو جاتا ہے، گھنٹے بھی اتنے ہی رہتے ہیں جتنے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس دن کو کسی اللہ والے سے یا کسی اللہ پاک کے پاک کام سے، اللہ پاک کے پسندیدہ عمل سے نسبت ہو جاتی ہے، تو وہ دن جو ہے وہ بڑا دن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں 4 مہینوں کو قرآن پاک میں حرمت والے مہینے قرار دیا، عزت والے مہینے قرار دیا، اور ان 4 مہینوں کو خاص طور پر اسلام سے پہلے بھی، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پاک سے پہلے بھی جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور پچھلی امتوں میں بھی ان مہینوں کے احترام کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 شہرا، 12 ہے، 12 مہینوں کی گنتی ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اللہ کی کتاب میں جب سے آسمان اور زمین اس نے بنائے ہیں، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے، ان میں کون سے حرمت والے ہیں؟ مفسرین کرام نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینوں میں 3 تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 جو مہینے ہیں یہ ایک ساتھ ہیں، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ ہے حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ، جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کو کافر اور مشرکین بھی حرمت والا سمجھتے تھے اور ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی لڑائیاں بڑی عرصے تک چلتی تھیں، بڑی دیر تک چلتی تھیں، لڑائیاں ان کی بڑی مشہور تھیں اور کسی بات سے یہ باز نہیں آتے تھے۔ لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تو یہ لوگ ان مہینوں میں خاص کر لڑائیوں سے بچتے تھے، قتال سے بچتے تھے، جدال سے بچتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، ان لڑائی جھگڑوں کو یہ لوگ بھی حرام سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے اسلام میں اس کی عزت کو اور بڑھا دیا، ان مہینوں کی عزت کو اور بڑھا دیا۔ ویسے اسلام میں لڑائی جھگڑا منع ہے، اور خاص طور پر ان مہینوں میں تو لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں کو ستانا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ کس قدر سخت ہو جاتا ہے یہ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ تو خاص کر جب غیر مسلمین اور کفار ان مہینوں کی حرمت کو سمجھتے ہوں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے بینگ اے مسلم ہمیں ان مہینوں کا کیسا احترام کرنا چاہیے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان مہینوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کو اللہ پاک نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔
فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کے تحت کہ ان مہینوں میں گناہوں سے باز رہو اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہو، کہ یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ بندہ جب نافرمانی کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنا ہی بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم پر غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں ہمارا نقصان ہے۔ اس نے بیان فرما دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں میں خاص کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور نیکی کے راستے پر رہو، لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ لہٰذا رجب المرجب اور جو دیگر 3 مہینے حرمت والے بیان کیے گئے، ہمیں ان میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے۔ اور یہ وہ مہینے ہیں کہ ان کی عزت اور ان کا احترام جو ہے وہ پچھلی امت کے لوگوں کو بھی فائدہ دیتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کسی غیر محرم پر ایک عورت پر عاشق تھا اور گناہ کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار اسے یہ موقع مل گیا، اس نے اس پر قابو پا لیا۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سب رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے رجب کے مہینے کا نام سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور رجب کی حرمت جو ہے وہ اس کے دل پر غالب آئی، اور اس نے اس گندے کام سے باز رہنے کا ارادہ کیا اور اس سے دور ہو گیا۔ رجب کے نام کی تعظیم سن کر اس عورت سے الگ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ اس میرے بندے سے جاؤ اور ملاقات کرو۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کا کرم کیسا ہوا، دیکھیے ایک اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے پاس گئے اور اس سے جا کر اپنی تشریف آوری کا سبب بتایا کہ میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں، جو تو نے رجب کی تعظیم کی ہے تیرے پیدا کرنے والے خالق و مالک عز و جل نے، اس لیے مجھے تجھ سے ملاقات کا حکم دیا ہے اور اسی وجہ سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ جب یہ اس نے سنا خوشی سے جھوم اٹھا، اس کے دل میں نور اسلام کی روشنی چمک اٹھی اور اسی وقت وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو رجب المرجب کی حرمت اور رجب کی عزت نے اس غیر مسلم کو بھی اسلام جیسی دولت سے مشرف کر دیا۔ تو اگر ایک مسلمان ہو کر ہم اسلام کے ماننے والے ہو کر رجب کی حرمت کا پاس کریں گے، رجب کی عزت رکھیں گے اور رجب کے مہینوں میں خاص اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو کبھی رجب المرجب میں نوافل کی کثرت کریں گے، رجب المرجب میں اللہ پاک سے ڈرتے رہیں گے، اس کے پسندیدہ کام کرتے رہیں گے، تو کیا بعید ہے کہ یہی کام ہماری مغفرت کا اور نجات آخرت کا سبب بن جائے۔ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت ہے، وہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ پاک کی رحمت بہا یعنی پیسہ نہیں طلب کرتی ہے، وہ قیمت وہ مال نہیں دیکھتی ہے، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ پاک کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، میرے بندے کو میں کیسے بخش دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت کی طرف لو لگائیں، اور خاص کر ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں اس کی ذات کی طرف ہماری ایک لو لگی ہوئی ہو، ایک ہمارا دل جو ہو اس کی طرف جھکا ہوا ہو کہ میں کس طرح اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اب تو رجب آ گیا، اب تو شعبان آئے گا، اب تو رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا، اب میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اب میری نماز فجر نہ قضا ہو، اب میں گناہوں سے باز رہوں، اب میں اپنے رب عز و جل کو راضی کروں، اب میں گالیاں دیتا ہوں گالیوں سے باز آؤں، ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کر لوں، بہن ناراض ہے اسے راضی کر لوں، بھائی ناراض ہے اسے راضی کر لوں، میں لوگوں کے دل توڑتا ہوں اب ایسا نہ کروں، میں لوگوں کو ستاتا ہوں اب ایسا نہ کروں،
اب मैं रजब का एहतराम करूं। क्या पता रजब का एहतराम करना ही हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने का सबब बन जाए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इन कामों को करें। और रजब के हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अगर हम देखें तो रजबुल मुरज्जब के बारे में ऐसे ऐसे फ़रामीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि दिल झूम उठता है कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक की हमें हासिल है। रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना हमें हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजबुल मुरज्जब के दिन में जो 50 रकात नफल पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बालों और रुबों के बराबर सवाब अता फरमाता है। अपने बालों को कौन गिन सकता है? बालों के बराबर सवाब अता फरमाने का बयान फरमाया। इसी तरह एक और हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब के महीने में तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। रजब के महीने में तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, क्योंकि अल्लाह पाक इसके हर लम्हे में कई कई अफराद को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता है। अरे खुश नसीब है वो लोग जो माह रजब में जहन्नम से आज़ादी पाले। अरे जो रजब में ही जहन्नम से आज़ाद हो गया, अब मज़े से शाबान की भी इबादत करेगा, रमज़ान में और बोनस कमा रहा होगा, खूब अल्लाह पाक की रज़ा और खूब नेकियों के ख़जाने उसे हासिल हो रहे होंगे। रजबुल मुरज्जब में ही अल्लाह पाक की रज़ा को हासिल कर लीजिए। जहन्नम से आज़ादी का सामान रजबुल मुरज्जब में ही कर लीजिए। क्या फरमाया कि अल्लाह पाक इसके हर लम्हे में कई कई अफराद को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता। हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ आना चाहिए। रजब जो है वो तौबा का महीना है, रजब इस्तिग़फ़ार का महीना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक दिन में 100 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। एक रिवायत में है 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते और इसकी ताकीद फरमाया करते कि अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार की कसरत का हुक्म दिया और फरमाया कि मैं खुद दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कोई ये ना समझे कि इस्तिग़फ़ार करना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कोई गुनाहों की वजह से था, माज़अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब भी गुनाह नहीं जा सकता है। प्यारे आका तो मासूम है, सय्यदुल मासूमीन है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मासूम है, आप गुनाह कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्यों? तौबा और इस्तिग़फ़ार का सिलसिला ये हमारी तालीम के लिए था। और तौबा और इस्तिग़फ़ार करने से और भी फ़वाइद हैं। खुद ये इबादत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार इबादत है और कितनी आसान इबादत है। हम बैठे हुए हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह पाक से मग़फ़िरत चाहते रहें और मग़फ़िरत पाने वाले काम करते रहें। ये रजब का महीना हमें मिला है, अल्लाह पाक की रहमतों के दरवाजे अब खुल गए हैं, अब रहमतों की बरसात हो रही है और वो करीम जो है वो बख्शने पर गोया उसका करम तुला हुआ है। लेकिन हम हैं कि फिर भी कैसे बेखौफ सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह से हमारा रजब से पहले का एटीट्यूड और रजब के बाद का अंदाज़, कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती है। अगर हम अपने अंदाज़ पर गौर करें, क्या अब कोई तहज्जुद का सिलसिला बन गया? क्या अब कोई नमाज़ों की पाबंदी में और मजबूती आ गई है? क्या हमारी ज़बान पर कोई क़ुफ़्ल मदीना लग चुका है? क्या हमारी निगाहों पे कोई अल्लाह पाक के खौफ का पर्दा पड़ा है? हमें गौर करते रहना चाहिए। अपना मुहासबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत के बड़े बड़े हिसाबों से बच जाएंगे। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब हो अपना हिसाब करते रहो। तो अपना हिसाब करते रहे, अपनी चेकिंग करते रहें, अकाउंटेबिलिटी करते रहें कि अब रजब आ गया। सोचते रहें, खुद इस बारे में फ़िक्र करते रहें, यार अब रजब आ गया, मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। जब कोई सीज़न आता है तो लोग कमा रहे होते हैं, ताजिर हजरात बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है तो बड़े बड़े स्टॉक हो रहे होंगे, गोदाम भर चुके होंगे और इसकी बड़ी तैयारियां हो रही होंगी। और ऐसे में कोई सोया पड़ा रहे और बड़ी बेफिक्री के साथ पूरा सीज़न गुजार दे और फिर ये सोचे कि मैंने बहुत कमा लिया, मेरे पास तो बहुत आ गया। तो ये बेवकूफ़ी है, ये नालायकी है। सीज़न में बंदा कमाता है। मैं रमज़ान मुबारक की बात नहीं कर रहा कि रमज़ान को इबादतें छोड़कर रमज़ान में सिर्फ दुनियावी काम किए जाए, वो अलग चीज़ है। रमज़ान मुबारक में जो खराफात होती हैं और तिजारती मामलात को लेकर स्टॉक करने वाले, गोदामों को भरने वाले, महंगे दामों लोगों को तंग करने वाले, माल बेचने वाले, वो अलग गुनाहों के सिलसिले करते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल देके समझा रहा हूँ कि जब तिजारत का सीज़न आता है या कोई और किसी मामले का सीज़न आता है तो सब लोग उसकी तरफ लग जाते हैं। मुसलमान होने के नाते रजब जो है
शाबान जो है, रमज़ान मुबारक जो है, ये गोया नेकियों का सीज़न है। अब अगर हम पहले भी वैसे ही सुस्ती में पड़े हुए थे, गफलत में पड़े हुए थे, और अब भी हम वैसे ही रहें, अब भी हमारा अंदाज वैसा ही रहे, तो क्या हम फिर क्या कमाएंगे? हम तो खसारे में रहे, फिर तो हम कामयाब नेकियों के ताजिर न बन सके। दावत इस्लामी ऐसा नहीं चाहती है। दावत इस्लामी चाहती है कि हर मुसलमान की इस्लाह हो जाए। हमारा मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब कोई बड़ा दिन आता है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मनाने की कोशिश करती है। मदनी चैनल पर बुजुर्गों के आरास और उनके अय्याम मनाए जाते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए होता है कि हम नेकियों की तरफ आएँ और हम उन दिनों और उन रातों की अजमत को समझें कि ये आम रात नहीं है, ये कोई आम दिन नहीं है, और ये कोई आम महीना नहीं है। तो इसके लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपनाना भी हमारे लिए बेहद मुफीद है कि हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें, अल्लाह पाक की रहमत से हम लौ लगाएं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, शैतान का रब तबारक व तआला के दरबार में ये मुकालमा हुआ, एक बात उसने की रब अज़्ज़ा वजल से, और गोया एक खुला चैलेंज दिया। उसने कहा कि ए रब, तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह मौजूद है, मैं उन्हें बहकाता रहूँगा, मैं उन्हें राह हक से भटकाने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह करीम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे बंदे जब तक मुझसे मगफिरत तलब करते रहेंगे, मैं उन्हें मगफिरत अता फरमाता रहूँगा। तो कितना ज़बरदस्त ये बयान है, कितनी प्यारी बात है। हमारा रब्बे करीम मगफिरत अता फरमा रहा है, जब जब मगफिरत मांगो वो अता फरमाता है। और अब तो रजब का महीना आ गया, उठ जाइए और अल्लाह पाक के इस मुबारक महीने को सेलिब्रेट कीजिए। इसके लिए कोशिश कीजिए कि हम अब इस महीने में गुनाहों से बचें, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करें। और रजब को तो अल्लाह का महीना कहा गया, कितना प्यारा ये महीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजबुन शहरुल्लाह तआला, रजब अल्लाह का महीना है, व शाबान शहरी, और शाबान मेरा महीना है, व रमदान शहरु उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। कितने प्यारे अंदाज में इन तीनों महीनों की हुर्मत को, इज़्ज़त को बयान फरमाया। लिहाजा हमें अब अल्लाह के महीने की हुर्मत और अल्लाह पाक के महीने की इज़्ज़त के लिए कमर बस्ता हो जाना चाहिए। और इसका एहतराम कैसे किया जाए? एहतराम क्या है? हो सकता है किसी के दिल में सवाल आए, एहतराम तो दिल में होता है। एहतराम दिल की कैफियत का नाम है, दिल में होता है तो बंदा दिल में कर लेता है एहतराम। लेकिन याद रहे कि जब दिल में किसी चीज़ का एहतराम होता है तो आज़ा भी उसका साथ देते हैं। आज़ा से पता चलता है, अगर बंदा गमगीन है दिल में तो आज़ा, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो चेहरा है वो बता रहा होता है। अगर सामने वाले की कोई इज्जत कर रहा होता है तो उसके आज़ा बता रहे होते हैं, वो खड़ा हो जाता है या उसका सर झुक जाता है या वो हाथ बांध लेता है। इस तरह पता चल रहा होता है कि ये ताज़ीम कर रहा है। कोई ये कहे मेरे दिल में तो है रजब का एहतराम, भाई लेकिन आप नमाज़ क़ज़ा कर रहे हो, आप रजब में भी वही सूद खा रहे हो, आप रजब में भी रिश्वतें ले रहे हो, आप रजब में भी माँ बाप को सता रहे हो, आप रजब में भी पड़ोसियों के हुकूक तलफ कर रहे हो, तो आपके काम तो नहीं बता रहे कि आपके दिल में एहतराम है। तो अगर दिल में एहतराम है तो रजब का, तो हमारे कामों से पता चलेगा कि हम रजब के अंदर कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम दिल से एहतराम करते हैं तो फिर कामों से भी, हमारे अंदाज से भी ये बात नज़र आएगी कि हम वाकई रजबुल मुरज्जब का एहतराम कर रहे हैं। हदीस पाक का मजमून है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मजमून है कि तुम रजबुल मुरज्जब का इकराम करो, रजबुल मुरज्जब का इकराम करो, अल्लाह पाक 1000 करामतों से तुम्हारा इकराम फरमाए। 1000 करामतों से इकराम फरमाना, और वो भी अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक जिसका इकराम फरमाए, यानी जिसको इज्जत दे, और 1000 करामतों के साथ, तो फिर उसकी क्या शान होगी। सब इज्जतें देता ही वो है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तू ही इज्जत देता है जिसे चाहता है और तू ही जिल्लत देता है जिसे चाहता है। बियदिकल खैर, भलाई तो है ही तेरे हाथ में। वही मौला अगर रजब का कोई बंदा एहतराम करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे का 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाता है। कितनी प्यारी बात है। अरे दुनिया में लोग इज्जत के लिए मरते हैं और इज्जत के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह पाक जिसकी इज्जत बढ़ा दे उसे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। फिर
उसे कोई बैनर नहीं लगाना पड़ता, कोई टीवी पे नहीं आना पड़ता, उसको फिर इज्जत अल्लाह पाक अता फरमाता है। और ऐसे अता फरमाता है कि लोग देखते हैं कि अल्लाह पाक ने इसे कैसी इज्जत अता फरमाई। और इज्जत कमानी है अल्लाह पाक के इस महीने का एहतराम कीजिए, इसका इकराम कीजिए, गुनाहों के बाजार को ख़त्म कर दीजिए। गुनाहों के बाजार अगर गर्म हैं, आपके इर्द गिर्द ये सिलसिले चल रहे हैं, आइए उठते हैं, नेकी की दावत का सिलसिला शुरू करते हैं, खुद भी नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को भी नमाज की दावत देते हैं। आइए खुद भी मस्जिदों में जाते हैं, दूसरों को भी मस्जिद आबाद करने का हम जहन देते हैं। अरे ये तो ख्वाजा का महीना है, ये तो वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक के इस बरगुज़ीदा बंदे का उर्स आता है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला। ख्वाजा का माना है बुजुर्ग, आपका लक़ब है ख्वाजा ख्वाजगान, आप बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। इस महीने में आपका उर्स आया, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की 6ठी रात इसका उर्स है, इनका उर्स है। हम इस महीने में ख़ास कर इनकी याद मनाते हैं, इनके लिए इसाले सवाब करते हैं, इनके फैज़ को पाने की हम कोशिशें करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान फरमाया। कितना बड़ा दीन का काम किया। जब दीन का काम किया तो आज रजब के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने कैसी इज्जत अता फरमाई, कैसी करामतें अता फरमाई। 1000 करामतों वाली रिवायत तो अभी हमने सुनी कि जो रजब का इकराम करता अल्लाह पाक उसे 1000 करामतों के साथ उसका इकराम फरमाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। अब गौर करें कि अल्लाह वालों की इज्जतें अल्लाह पाक ने कैसी बढ़ाई। आज हम उनका नाम कितने कितने 100 साल बाद भी याद रखे हुए हैं। अपने दादा परदादा उनके ऊपर वालों का नाम किसी को नहीं पता होता, उनकी कब्रें तक लोग भूल जाते हैं। लेकिन इन अल्लाह वालों के मज़ारात पर लोग बैठे होते हैं, इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते हैं और शरीयत के मुताबिक जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और ये सब अल्लाह पाक के राज़ों में से एक राज है कि वो अपने बंदों के मज़ारात को कैसे आबाद फरमाता है, किस अंदाज से उनकी इज्जत को बढ़ाता है, क्योंकि ये काम करते हैं, ये नेकी की दावत का काम करते हैं, इन्होंने दीन का काम किया, आज लोग इन्हें याद रखे हुए हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई इज्जत वाला मामला हो, हमें भी अल्लाह पाक करामत अता करे और एहतराम और इज्जत अता फरमाए, तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें कुछ अमल भी करना होगा। हम अमल की तरफ आएँ, अल्लाह पाक की रज़ा को चाहने की तरफ आएँ और हम अल्लाह पाक से उसकी रज़ा हासिल करें। इसके लिए बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन महीना है, बेहतरीन दिन है, रजबुल मुरज्जब के बाबरकत दिन है। इस महीने में जो अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने का मज़ा है, जो रोज़े रखने का मज़ा है, वो आम महीनों में तो नहीं है ना। अब तो रजब का महीना है, रोज़ादार भी कैसा मुतमईन होता है, कैसा खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने रजब के रोज़े की सादत अता फरमाई। रजब में रोज़ा रखने वालों को अल्लाह पाक रंजीदा नहीं फरमाता है। बसरा की एक खातून ने एक वसीयत की अपने इंतकाल से पहले कि मैं जिस कपड़े में इबादत किया करती थी रजब के बाबरकत महीने में, मुझे उसी कपड़े में कफन देना और दफन करना। उसका जो बेटा था वो ये वसीयत भूल गया, किसी और कपड़े में दफना दिया। दफना कर जब घर पहुंचा तो देखा कि जिस कपड़े में अपनी वालिदा को दफनाया है वो कपड़ा घर में मौजूद है। अब जब जहाँ पर वो कपड़ा रखा था जिसकी वसीयत की थी कि इस महीने रजब के महीने में मैं जिस कपड़े में इबादत करती थी उसमें मुझे कफनाना, वो कपड़ा वहाँ से गायब था। अब वो ये सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ। अचानक गैब से एक आवाज़ आई और किसी ने कहा कि हमने उसी कपड़े में अपनी बंदी को, अपने उस शख्स को, उस औरत को दफना दिया है जिसकी उसने वसीयत की थी। क्योंकि जो रजब के रोज़े रखते हैं, हम रजब के रोज़े रखने वालों को रंजीदा नहीं किया करते, उन्हें कब्रों में गमगीन नहीं किया करते हैं। तो ये कैसा कमाल है, ये कैसा करम है कि इस वसीयत को भी जो उस औरत ने की थी, उस खातून ने की थी, उसे पूरा किया गया और उसका गम दूर कर दिया गया। हमारे कितने गम हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशनें हैं। आइए ना रजब के कुछ रोज़े रख लेते हैं, कुछ अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए नवाफिल की आज नियत करते हैं। आज रजब के एहतराम के लिए हम कमर बस्ता हो जाते हैं, अपने अमल के ज़रिए, अपने नियतों के ज़रिए, अपने अंदाज के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए कुछ रजब के एहतराम के लिए हम उठ जाते हैं कि अब इंशाअल्लाह मेरे अमल से भी रजब का एहतराम नज़र आए, मेरी गुफ्तगू से भी नज़र आए, मेरी इबादतों से भी रजब का इकराम और एहतराम नज़र आए। इसके लिए हम हिम्मत करें, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। मदनी काफ़िलों में बड़ा वक्त मिलता है इबादत का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अफजल इबादत इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। हम हिम्मत करें, रजबुल मुरज्जब के बाबरकत महीने में कम अज़ कम 3 दिन के मदनी काफ़िले में तो सफ़र होना चाहिए।
اسلامی بہنیں بھی مدنی کاموں میں اور تیزی کر دیں. اب تو عبادت اور نیکیوں کی طرف لوگ آ بھی جلدی جاتے ہیں جب یہ ایام ہوتے ہیں. نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے, لوگ جلدی آ جاتے ہیں. عام دنوں کے مقابلے میں ان حرمت والے دنوں میں, رجب میں, شعبان میں, رمضان المبارک میں لوگ جلدی آتے ہیں. بلانے والا ہونا چاہیے. آئیے ہم کچھ مدنی کاموں کی بھی نیت کریں, اپنی ذاتی عبادتوں کی بھی نیت کریں. رجب کا کیا مزید احترام ہے, رجب میں اور کیا کیا برکتیں ہیں, اور ہاں رجب میں کن کن بزرگان دین کے مزید اعراس مبارک آتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں سنیں گے. اور پھر آگے چل کر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مبارک مہینے میں یہ سلسلہ ہوا, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز دیا گیا جو دنیا میں کسی کو نہ ملا. یعنی رب تبارک و تعالی نے لا مقام بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھایا. تو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں اس کو بھی شامل کریں گے. یہ سلسلہ آپ ہر منگل آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جب تک رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر کوئی مجھ سے بھول ہوئی ہے, کوئی بات آپ کو بری لگی ہے, میں اس سے معذرت خواہ ہوں. جو باتیں اچھی پیش کی ہیں ان پر عمل کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی منگل سلسلہ اللہ کا مہینہ میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک